Hello everyone, welcome to yet another edition of Market Ruburu. Today we have a very different topic and I have with me Raju Ranjan, who of course his videos of market kya lagta hai are getting popular day by day. He gives levels and stocks every day which work very well. But today we are not talking about market kya lagta hai. We are going to talk about long term, which is extremely important in terms of savings for any individual, whether he is 25 years old or whether he is 45 years old. You have to take care of your future, and there is no other avenue like equity markets. So people will say that what about bear markets and all that, but then that is what exactly we are going to talk about. And so I have a theory here which I have been studying over the last 6-8 months, and in fact started trading it also. And now that we have discussed it almost threadbare internally, we thought why not show it to the public and ask questions. This is not a recommendation. I definitely would urge people to study this system and I mean whatever pros and cons, find out for yourself. Of course, definitely mention in the comments on this video below, or maybe email it to us. But definitely whatever we have thought about it for the last 6-8 months, this is the result. And I'll be talking about the system and the background about it. And Raju will play the devil's advocate. He'll ask questions like any question, any common man who has questions of what about, questions about the market. He'll be playing that role today. So welcome Raju. थैंक यू सर. तो अब जो हम लोग का डिस्कशन जो हुआ इस पॉइंट पे और काफी इंटरेस्टिंग जो लगा, फिर हम लोग सोचे कि यहाँ की इसका एक वीडियो बनाते हैं. तो पहले तो ये माइंड में है कि यहाँ की अगर मुझे मार्केट नहीं आता है, मार्केट समझ में ही नहीं आता, यानी चार्ट नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए. अगर मेरे पास पैसा है तो इन्वेस्टमेंट तो करना है. सो इन्वेस्टमेंट कौन कौन से पार्ट पे करना चाहिए, आपके एंगल से क्या लगता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. सी, जिसको मार्केट का एनालिसिस नहीं आता इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स और इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. बट विच काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलायंस ले लो, टाटा स्टील ले लो, दैट इज ऑल एब्सोल्यूट आई मीन ब्लाइंड गेस. But in long term investments, again the other problem is people don't have lump sum capital, and then they don't know how much risk to take per stock, how many stocks to buy, which stocks to buy. There are so many problems. So that's why the concept of long term SIP started. Of course, that also started long back. But I have a problem even in long term SIP. What do people do in long term SIP? There are three types mainly. One is long term stock SIP, one is SIP in mutual funds, and one is SIP in ETFs. So ETF क्या होता है? ETF is a passive investment. ETF जैसे for example NIFTYBEES. NIFTYBEES is an ETF of Nifty 50. So it mirrors the move of Nifty 50 index of NSE, the leading index of NSE. So the way Nifty 50 moves, NIFTYBEES also moves. But of course there are other things which are there. But now long term investment कैसा करते हैं, जो आपने पूछा, तो these are the three broad methods. अच्छा, ये SIP क्या होता है? SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. जो फॉर एग्जांपल समवन इज वर्किंग समवेयर, ही हैज अ सैलरी ऑफ व्हाटएवर 50, 60, 80,000 rupees, and he has to allocate some capital, a fixed capital every month. That is extremely important. जो either it is 5,000 rupees, 10,000 rupees, 2,000 rupees, whatever it is, वो उतना उसने allocate करना ही चाहिए. In fact, there are even with Definedge we have in our app we have system to automate that SIP. Just you can give the list of stocks, and automatically at the on that specific day of the month, whatever the date, 2nd or 5th or whatever, after the salary, like usually people do, that gets deducted and that stock gets bought of that value. So that is one thing. So इसका मतलब क्या है कि अगर SIP अगर हम किए तो मुझे देखने की मार्केट जरूरत नहीं है, हम मार्केट छोड़ सकते हैं कि आगे ठीक है, मार्केट कहीं पे भी चला है, एवरी मंथ मेरा पैसा जा रहा है और मेरा पैसा ऊपर का ऊपर. ये जो चीज है वो इट इज नॉट एज सिंपल एज यू हैव पुट इट. इट इज इजियर सेड देन डन. बिकॉज अगर आपने SIP में एक जमाने में येस बैंक वाज अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50, तो लेट्स से 5 साल पहले किसी ने येस बैंक में SIP चालू किया होता, मे बी 250-300 रुपए पे, वो अभी कितना है, 15-17 रुपए जो भी है. तो उस टाइप का SIP. इसलिए द प्रॉब्लम आई फेस इन रिकमेंडिंग टू पीपल इज विच स्टॉक्स. So either you have to be knowledgeable. Not everyone is knowledgeable. There are you need deep analysis and knowledge of the market to understand and identify which stocks you should buy.
एंड देन अगेन पीपल से कि SIP शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्टॉक्स। मतलब एक स्टॉक ने अगर बहुत ही अंडर परफॉर्म किया तो अदर स्टॉक्स विल टेक केयर ऑफ दैट, बट देन दैट मींस इंस्टेड ऑफ 5 स्टॉक्स यू विल रिक्वायर 10 स्टॉक्स, एंड 10 स्टॉक्स मतलब बेसिक डिफिकल्टी आपको इधर बोलता हूँ कि इफ यू एलोकेट 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर स्टॉक SIP एंड यू से 5 स्टॉक्स, तो ऑटोमेटिकली यू कैनॉट हैव रिलायंस इन दैट लिस्ट। MRF तो भूल ही जाओ। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स विच आर मोर देन 1,000 रुपीज, तो how can you allocate 5 stocks for 5,000 rupees? So stock selection is difficult and then your focus, your list becomes narrow. So इसका मतलब अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो शायद स्टॉक SIP मेरे लिए नहीं है। Correct. That is a very strong statement, but it is a fact that it is very easy to say I have started stock SIP in 5 stocks, 10 stocks 10 years back, and maybe now I have at that time cumulatively I had invested 1 lakh and now it is 5 lakh. ये सब बोलना बहुत आसान है, बट whenever a complete newcomer starts, if he doesn't have anyone to give advice, and in fact who knows, even that advice might be wrong. So एक जमाने में I keep saying Yes Bank was a blue chip stock. तो which stocks, मतलब ठीक है सेक्टर वाइज एक एक चुनेंगे, बट अगेन माय प्रॉब्लम इज इफ यू गो टू मोर देन 5 स्टॉक्स, फिर उसका एलोकेशन फॉर अ लिमिटेड अमाउंट एवरी मंथ। और दूसरा ये है कि SIP में जो सबसे बड़ा रूल जो है, यू हैव टू एलोकेट द सेम अमाउंट एवरी सिंगल मंथ। इफ यू डिसाइड 5,000 रुपीज एवरी मंथ, तो जनवरी में 500 रुपए डाला, फरवरी में डाला। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मार्च में मैं नहीं डालूंगा, अप्रैल में 20,000 डालूंगा। ये इट हैज टू बी सेम अमाउंट एवरी सिंगल मंथ। सो इसका मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, एवरी मंथ कंटिन्यूटी। वो डिसिप्लिन सी स्टॉक मार्केट में इफ यू वांट टू अर्न डिसिप्लिन तो जरूरी है। मतलब वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट स्टॉप लॉस एंड ऑल दैट। यहाँ पे स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म SIP में होता नहीं है, बिकॉज नो वन बॉदर्स अबाउट। इनफैक्ट जैसे कोविड का जो क्रैश था 40% जो फॉल हुआ निफ्टी में, तो कितना पैनिक था नीचे के लेवल पे, जब निफ्टी 10,000 के नीचे 10,000, 9,000, 8,000 आए। तो आई नो सो मेनी पीपल हु हैड स्टॉप्ड देयर SIP। तो ये स्टॉप करेंगे तो नहीं हो सकता। सो दैट पैनिक इज एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड यू हैव टू ओवरकम दैट। तो ये स्टॉक SIP का हुआ। दूसरा हुआ म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में अगेन प्रॉब्लम इज कितने स्कीम होते हैं आप मतलब एज पर योर गेस, नॉलेज तो नहीं हो सकता। हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर? बहुत सारे 2,000 के ऊपर। हाँ, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बहुत सारे। देयर आर AMCs, हर एक AMC का लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, थीमेटिक फंड, फ्लेक्सी एंड डेट फंड, सो मेनी फंड्स आर देयर। तो उसमें से कौन सा? तो उसमें भी जैसा स्टॉक सिलेक्शन है वैसा ही म्यूचुअल फंड के SIP के लिए भी सिलेक्शन है। विच फंड, मतलब ठीक है यू कैन नैरो डाउन द AMC, बट उसमें लार्ज कैप लेना चाहिए कि मिड कैप लेना चाहिए कि स्मॉल कैप लेना चाहिए, अगेन दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड का। जो तीसरा है, जो इनफैक्ट इट इज द मोस्ट अंडररेटेड, आई एम नॉट श्योर व्हाई बट इट इज द मोस्ट अंडररेटेड, बट बिलीव मी इट इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। इसमें आपको कुछ सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। बट उसका हिस्ट्री ये है कि ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इट इज पिकिंग अप वेरी मच इन इंडिया। मतलब दुनिया में जैसे US मार्केट विच इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, वहां पे 1950 के बाद ETF को दूसरा एक नाम है पैसिव फंड्स, बिकॉज यू आर नॉट सिलेक्टिंग एनी स्टॉक, इट इज अ ETF ऑफ दैट सेक्टर। तो इट मिरर्स दैट सेक्टर, मतलब जैसे NIFTYBEES है, इट मिरर्स निफ्टी, वैसा है। तो नाउ दैट इज पिकिंग अप, इनफैक्ट गेनिंग पॉपुलरिटी, एंड इनफैक्ट इवन नाउ जो NIFTYBEES का हम जो बात करने वाले हैं उसमें डेली वॉल्यूम्स अगर देखोगे तो धीरे धीरे बहुत बढ़ने वाला है, एंड इट हैज टू मिरर निफ्टी। सो एनीवन हु इज मैनेजिंग दैट NIFTYBEES हैज टू डू दैट बैलेंसिंग। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। NIFTYBEES, निफ्टी 50 के जो रेशियो है, 50 स्टॉक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसका बैलेंसिंग वो लोग करते हैं। सो इनफैक्ट दैट इज देयर जॉब, हुएवर मैनेजेस दैट ETF, दैट इज देयर जॉब टू बैलेंस द 50 स्टॉक्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स परसेंटेज जो है वो। तो इसलिए ETF इज अ वेरी अंडररेटेड एवेन्यू फॉर इन्वेस्टिंग, बट वी विल सी एज वी गो फॉरवर्ड हाउ इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो एक सबसे बड़ा जो मेरे लिए मिथ है
इनफैक्ट पिछले 6-8 महीनों में इतना लोगों, मैं हमेशा तो बात करते ही रहता हूँ, 6-8 महीने में थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड्स ऑलवेज गो अप। ये सही है कि गलत है? ये तो गलत ही है, बिकॉज 10% ड्रॉडाउन भी हो सकता है, Possible है। 20% ड्रॉडाउन भी हो सकता है। जैसे ये जो आया था कोविड फॉल, वहां पे तो 40% हुआ था। सभी को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये खराब है, लॉन्ग टर्म में दे विल डेफिनेटली डू वेल, बट देन पीपल डोंट हैव द कन्विक्शन टू स्टे इन्वेस्टेड। और जैसे जैसे ड्रॉडाउन आते जाता है पीपल लोग डर जाते हैं, और मे बी वो रिडेम्पशन चालू होता है या पैनिक होता है कि अभी मैं शुरू करूं या स्टॉप ही कर देते हैं। चलो 6 महीना मैं स्टॉप करता हूं, फिर 6 महीने के बाद और तभी मार्केट घूमेगा, और तो ये एक प्रॉब्लम है। और वो जो डिसीजन है वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, इमोशन बेस्ड है, और इमोशन तो मार्केट में चलता नहीं है, ये तो सबको मालूम है। इनफैक्ट दैट इज व्हाट वी टीच सिस्टम्स विच इज कंप्लीटली इमोशन लेस। तो म्यूचुअल फंड्स ऑलवेज गो अप इज नॉट अ फैक्ट, डेफिनेटली नॉट। अगेन जो जैसे पहले डिस्कस हुआ, मेन प्रॉब्लम विद स्टॉक एसआईपी इज हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मेरे पास अगर 5,000 के ऊपर नहीं है तो आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू लेसर वैल्यू स्टॉक्स, अगेन विच इज डिफिकल्ट, और उसमें भी विच स्टॉक्स। तो दैट्स व्हाई ये इसमें भी प्रॉब्लम है, ये अमाउंट पर मंथ का इशू है, विच स्टॉक्स का इशू है। तो इसलिए वी नैरो डाउन ऑन निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट में भी, उसमें भी एक फिक्स्ड एसआईपी का ये चलता है। अभी निफ्टी 20 का वैल्यू कैसे, आज 213 214 कुछ वैल्यू है। तो व्हाट डज मीन, यू कैन बाय 1 निफ्टी 20 इफ यू हैव 215 रुपीज, एंड बाय बाइंग दैट 1 निफ्टी 20 यू आर बाइंग 50 स्टॉक्स, 50 टॉप स्टॉक ऑफ निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स ले रहे हो 215 रुपए में। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ निफ्टी 20। यानी अगर हम एक निफ्टी 20 बाई कर रहे हैं तो मेरा एक्सपोजर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में है। एग्जैक्टली, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ निफ्टी 20। लेकिन निफ्टी 20 में भी मैंने जो स्टडी किया है 16-17 साल का एक्चुअल डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल चार्ट लेके डेटा स्टडी किया है। और ये भी स्टडी किया है कि इफ समवन हैड स्टार्टेड 16 years back, बिकॉज व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम 2007 आई विल एक्सप्लेन, but if someone starts on 1st January 2007 investing 1,000 rupees per month every single month on a fixed date, whatever 1st of every month, 5th of every month, जो भी है, उसका आज क्यूमुलेटिव कितना हो गया होगा। तो जो अभी मैं सिस्टम बोलने वाला हूं, that will beat that 1 month SIP easily। यानी रेगुलर जो एसआईपी एवरी मंथ करता है उसको भी बीट कर, उसको आराम से बीट करेंगे। निफ्टी का रिटर्न्स मतलब जैसे 2007 में निफ्टी 20 कुछ 40-45 रुपए था, जो अभी 215 है। तो 40 लोग बोलेंगे कि मैंने 40 में लेके रखता था, तो अभी 215 फिर भी अप्रिसिएशन है। इवन इफ यू बाय लमसम एट 40-45 इन 2007 एंड राइट नाउ वॉट एवर बी द रिजल्ट वैल्यू, उसको भी ये बीट करेगा। लमसम में लेगे तो भी, और निफ्टी एसआईपी करोगे तो भी। तो ये निफ्टी 20 में जैसा मैंने कहा, लिक्विडिटी इज एम्पल, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब दिन के 15 लाख 20 लाख 25 लाख निफ्टी 20 ट्रेड होते हैं, तो मतलब फॉर स्मॉल इन्वेस्टर देयर इज नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट 50 लाख तक भी जाता है, एंड इट लाइक आई सेड इट मिरर्स द निफ्टी रिटर्न्स। बट जैसे पहले बात हुई, निफ्टी में भी ड्रॉडाउन आ सकता है, मे बी 8 or 10% पर ईयर, या 6 एवरी कपल ऑफ ईयर्स 8 to 10% ड्रॉडाउन तो आता ही है। एवरी 7-8 years एक बड़ा फॉल भी आता है। जो लोग पिछले 2 साल से मार्केट में है उनको ये शायद पता नहीं होगा, बट एवरी 7-8 years इट इज, इनफैक्ट इट इज अ फेमस 8-year साइकिल विच इज कॉल्ड इन द मार्केट। एक बड़ा 30-40% का फॉल आता ही है। इट मे नॉट बी अ स्ट्रेट फॉल लाइक कोविड। इनफैक्ट जो कोविड का था, इट वॉज नॉट अ बेयर मार्केट एट ऑल। वो जो भी हुआ वो 2 महीने में होके खत्म हो गया। जो ग्राइंडिंग डाउन रहता है, जैसा 2001 से 2003 या 2007-8 से 2009 एंड तक, तो ये जो 2 साल का बेयर मार्केट चलता है, उसमें ये एसआईपी वाले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो देन व्हाट आई थॉट ऑफ, दिस इज समथिंग व्हिच लाइक आई सेड I cannot say invented because it is already existing. I have discovered many months back. I started researching this Nifty 20। तो ये एक सिस्टम बनाया है। Now the other problem is, अगर निफ्टी 20 का चार्ट देखोगे तो ये है निफ्टी 20 का चार्ट, यानी ये कैंडल स्टिक चार्ट है। Okay. तो इसमें फॉर सम रीजन
एंड दैट रीजन नो वन विल नो, रोज एक फ्री हाई रहता है। कोई भी चार्ट देखो, ऑलमोस्ट एक वीक में 3 या 4 दिन एक फ्री हाई रहता है, तो इसलिए कैंडल का मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, बहुत ऑड दिखता है। तो इसलिए जो सिस्टम मैंने निकाला है वो यू कैन सी इट फ्रीली ऑन zone.definedgesecurities.com। उसमें क्या करने का है, तो प्लॉट निफ्टी 20 चार्ट ऑन रेंको टाइप ऑफ चार्टिंग। तो इसी चार्ट को मैंने अगर रेंको पे कन्वर्ट किया, अभी जैसे यानी अगर कैंडल्स की बात करें तो ये 4 प्राइस को लेकर ओपन हाई लो क्लोज ऑफ एवरी डे, दिस इज अ डेली चार्ट। और इसमें टाइम रहता है बिकॉज इट इज अ डेली चार्ट, रोज का मतलब आज का कैंडल है, कल का कैंडल है, परसों का कैंडल है, हर एक दिन का एक कैंडल है। अभी रेंको में क्या होता है, टाइम का एलिमेंट निकाल देते हैं, और ये हो गया उसका रेंको चार्ट। रेंको चार्ट ऑन 0.25% ब्रिक साइज। रेंको में ब्रिक्स रहते हैं, तो अगर आप इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अ ब्रिक एंड व्हाट इज अ रेंको चार्ट। सो अभी अगर जो कैंडल की बात किए, वहां पे 4 प्राइस रहता है, ओपन हाई लो क्लोज। अब जब यहां पे अगर हम बात करें तो केवल क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। और एवरी अब लाइन चार्ट को अगर इसी को अगर लाइन चार्ट में अगर आप कन्वर्ट करो तो ये लाइन चार्ट का जैसे एवरीडे एक एक लाइन, यानी जहां पे क्लोजिंग होगा वो लाइन ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इसी को अगर हम रेनको में कन्वर्ट कर दे तो ये जो प्राइस है यानी क्लोजिंग बेसिस, तो अब ये अगर देखो तो ये ब्रिक साइज क्या है, 1% है। यानी इसका हर एक ब्रिक का जो साइज है ये 1% है, और एवरी प्राइस मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करते हैं इस ब्रिक में। मतलब हाइट ऑफ द ब्रिक इज 1%। सो एवरी ब्रिक का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और जो हाई है, अगर करंट ब्रिक का हाई प्रीवियस ब्रिक का जो है लो होगा। ठीक है, अभी जैसे ये देखो, ये हाई है, इसका करंट ब्रिक का जो लो है प्रीवियस ब्रिक का हाई रहेगा। और अगर ये जो हाई है यानी हाई लो ही इधर प्लॉट होता है, कुछ इसका ये नहीं है। और इस पे बेसिक वीडियो ऑलरेडी inside.definedge, इनफैक्ट हमारा सबसे पहला मार्केट रूबरू का वीडियो ही रेंको चार्ट से ही शुरू किया था। यू कैन गो टू inside.definedgesecurities.com एंड द फर्स्ट वीडियो ऑफ मार्केट रूबरू इज ऑन रेंको चार्ट्स। तो वहां पे ये डिटेल में और डिस्कशन हुआ है, तो बाकी हम कंटिन्यू करते हैं बेसिक से। ये तो once you know what is the Renko chart, then it is very easy system. There is no complicated thing. You have to do it only once in a day. तो ये you have to make it a 0.25% chart. मतलब जो पहले इन्होंने बोला 1% का brick size, so that becomes a 0.25% brick size. And 0.25% brick size के बाद then you have to go to indicators. Add indicator में just type MAS. You will get 2. तो just select must indicator and click on OK. Don't change any parameters. So default parameter डालना है, डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके ठीक है। और इसमें जो रहता है एक मस्ट इंडिकेटर का, जो इनफैक्ट उसके भी बहुत सारे वीडियोस है। तो मस्ट इंडिकेटर लुक्स लाइक अ क्लाउड। फॉर पीपल हु नो व्हाट इज इचिमोकू, दे विल रिलेट टू द वर्ड क्लाउड। तो व्हेनेवर द क्लाउड इज रेड, दैट मींस दैट इंस्ट्रूमेंट इज वीक। व्हेनेवर द क्लाउड इज ग्रीन, दैट मींस द इंस्ट्रूमेंट इज बुलिश। वीक मतलब बेरिश। तो ठीक है, अभी जो दिख रहा है वो बहुत, इट लुक्स वेरी इजी इन हाइंडसाइट कि मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे अभी भी मेरा चल रहा है, जो 190 के आसपास बाय हुआ वो अभी भी 213 के आसपास मेरा बाय में ही है। बट देन व्हाट इज द सिस्टम? तो बिकॉज इसमें अगर इफ यू जूम इट आउट, आई हैव इनफैक्ट ट्वीटेड दिस आल्सो कि इट लुक्स वेरी इजी इन हाइंडसाइट, बट यू सी कि देयर आर whipsaws आल्सो। मतलब whipsaw मतलब क्या होता है कि जैसे इफ यू थोड़ा अगर पीछे जाएंगे, तो एवरी सिस्टम का whipsaw तो रहेगा। अगर ट्रेंड है उसके बाद whipsaw ये रहता है। तो ये जैसे ये whipsaw, हाँ ये दिख रहा जैसे है, ये बाय हुआ था, यहाँ पे सेल हुआ था, थोड़ा सा बाय होके वापस सेल में गया, तो दिस इज अ लॉस। यू हैव टू टेक दैट लॉस। नाउ दिस इज द ओनली डिसिप्लिन विच वन नीड्स टू फॉलो फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। अभी ये सिस्टम ऐसा है कि यू हैव टू लुक एट दिस चार्ट ओनली वंस इन अ डे। अभी जैसे मुझे मालूम है कि कल फॉर टुडे और फॉर टुमारो माय स्टॉप लॉस इज 213। मतलब जो निफ्टी 20 मेरा 190 192 बाय हुआ है, इफ इट गोज बिलो 212.5 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एट 330, आई हैव टू एग्जिट। तो ये जो बाय आया था, जो मैंने पहले यहाँ पे दिखाया, वो आई थिंक 3rd और 4th अप्रैल को बाय आया था इन 2023। दैट टाइम निफ्टी 20 वाज अराउंड 190 192 के आसपास था ये, एंड नाउ द स्टॉप लॉस इज 212 213।
नाउ L2 जो है लेवल है, यू कैन सी L1 L2 हियर, तो L2 लेवल जो है वो अभी कितना दिख रहा है यहाँ पे 213.1। तो L2 लेवल के नीचे 2 कंसेक्यूटिव ब्रिक्स हो गया, ओके, मतलब सेकंड कंटिन्यूएशन ब्रिक। अभी इसमें क्या होता है, ये समझो दिस इज वन ब्रिक, दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूएशन ब्रिक, अनदर कंटिन्यूएशन ब्रिक, अनदर कंटिन्यूएशन ब्रिक। इफ दिस इज अ रेड ब्रिक, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ब्रिक, मतलब द ट्रेंड इज कंटिन्यू। तो L2 के नीचे इफ वन ब्रिक इज फॉर्म्ड, इवन इफ इट इज हाफ ऑफ द ब्रिक इज बिलो L2, उसका जो कंटिन्यूएशन ब्रिक का वैल्यू है वो यहाँ पे दिखता है। तो फॉर एग्जांपल नाउ इसका कंटिन्यूएशन ब्रिक का वैल्यू क्या है 212.9 और L2 वैल्यू है 213.1। मतलब इफ निफ्टी बीस क्लोजेज एट 212.9, L2 के नीचे क्लोज होगा, बट उसका जो कंटिन्यूएशन ब्रिक है विच विल बी 0.25% ऑफ 212.9, उतना कम, तो लगभग 212 पकड़ के चलो। सो एट 212 आई हैव टू एग्जिट दिस पोजीशन, ओके, दिस इज द सिस्टम। तो इनफैक्ट मेरा जो बैक टेस्ट हुआ है, मैंने दिसंबर के बाद बैक टेस्ट छोड़ दिया था बिकॉज आई वाज कन्विंस कि इट इज वेरी गुड। अगर ये भी मैं इंक्लूड करता हूं तो ये तो अप्रैल के बाद 190 to 212, दैट इज 22 रुपीज ऑन 190, दैट इज ऑलमोस्ट 10% इन 3 months। So I didn't want to include this, so I have not. I could have easily added this as a. In fact, मेरे पास जो 17 years का बैक टेस्ट है, every single trade ऐसा लेके मैन्युअली मैंने लिया है। There are about 118 trades in 17 years। कभी कभी एक महीने में 2-3 हो जाते हैं, बट जैसे अभी ये अप्रैल से हुआ, लास्ट 3 महीने में कुछ ट्रेड ही नहीं था। अप्रैल स्टार्ट से जो बाय में है, आज टुडे इज व्हाट 23 अगस्त, अभी भी बाय में ही है। अप्रैल टू अगस्त जस्ट एक सिर्फ लेवल देखना है 3:30 बजे, वो टूटा है कि नहीं टूटा है, और टूटा है तो नेक्स्ट डे यू कैन एग्जिट। उसमें स्लिपेज भी रहता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल इफ फॉर सम रीजन निफ्टी गैप्स डाउन 200 पॉइंट्स टुमारो, तो 212 का आपको 211 भी सेल मिल सकता है। दैट स्लिपेज इज पार्ट ऑफ द गेम, बट दैट डजंट हैपन एवरी टाइम। You can take action at 3:29 p.m. or you can take action at 9:20. In fact, another thing to keep in mind about Nifty Bees: never trade in the first 2-3 minutes. Never. Let 3-4-5 minutes go. Whatever trade you want to do, buying or selling, do it only after 9:20 a.m. तो आप जो रेकमेंड कर रहे हैं, यानी 3:30 के क्लोजिंग का मतलब क्या, अगले दिन ट्रेड करना है या 3:30 में दिख गया क्लोजिंग हो रहा है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो टुडे इफ निफ्टी हैड फॉलन 200 पॉइंट्स इन द लास्ट हाफ एन आवर, ये निफ्टी भी डेफिनेटली 212 के नीचे क्लोज होता था। तो एट 3:29 PM यू नो कि ये बेरिश हो गया है ऑलरेडी, तो दैट इज अ स्लाइटली सब्जेक्टिव डिसीजन, या यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट डे एंड टेक एक्शन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अगर मान लीजिए कि इंट्राडे में ही अगर 212 के नीचे अगर आ गया, एग्जैक्टली ये हुआ था लास्ट वीक व्हेन निफ्टी मेड अ लो नियर 19250, उस दिन निफ्टी बीस वेंट टू 212.5 और समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिक L2 के नीचे क्लोज होगा, बट इट क्लोज अबाउट 213। तो इसलिए वो अभी भी चार्ट पे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेनको चार्ट्स की क्लोजिंग बेसिस पे है, इसलिए वो लेवल टूटा नहीं है। इंट्राडे में इफ इट हैड गॉन फर्दर लोअर कि 212, उस दिन एग्जिट आ जाता था चार्ट पे, लेकिन वो एग्जिट नहीं आया। तो क्या करना चाहिए, यानी इंट्राडे में अगर 212 के नीचे गया, और ये सिस्टम का पर्टिकुलर इसी सिस्टम की अगर हम बात करें, अभी निफ्टी बेस का ऐसा है कि अभी जैसे ये 213 के आसपास रिवर्सल है, तो आप चाहिए तो 50 पैसा 70 पैसा कुछ कुशन रख के चल सकते हैं कि उसके नीचे गया तो ही एग्जिट करेंगे, बट 3:29 PM को यू नो कि वो क्लोज होने वाला है कि नहीं है। ओके, तो दैट टाइम यू कैन टेक, इनफैक्ट आजकल तो निफ्टी बीच का तो ब्रोकरेज नहीं रखता, तो इट इज री एंट्री इज जस्ट अ ब्रोकरेज अवे। इनफैक्ट इट इज नॉट अ ब्रोकरेज अवे, कुछ नहीं है, सिर्फ एसटीटी और जो भी एक्सचेंज चार्जेस होता है। बट 3:29 PM को लेवल क्या है वो देख के आइदर यू शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड और री एंट्री में 20-30 पॉइंट ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा निफ्टी बीस का। तो एंड दैट हैपेंस वेरी रेयरली, मतलब जैसे अभी अप्रैल टू अगस्त, मतलब जैसे मैंने बोला कि आउट ऑफ 17 years देयर वर अबाउट 118 ट्रेड्स, उसमें आई हैव स्टडीड ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेड एंड एवरी सिंगल लेवल ऑन अ कैंडलस्टिक चार्ट आल्सो। उसमें देयर वर अबाउट 7-8 ट्रेड जिसमें निफ्टी में गैप अप हुआ था। इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट most of the times the gap is in the direction of the trend, but वहां पे रिवर्सल गैप से हुआ और आगे चला गया। 17 साल में सिर्फ 7-8 बार ऐसा हुआ है, तो उसमें ठीक है, यू विल गेट मतलब एंट्री 1-2 पॉइंट आगे या ऊपर या एग्जिट नीचे मिलेगा।
तो गैप जो हुआ था वो अगेंस्ट द ट्रेंड हुआ था। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बाय सेल में है और बाय 200 रुपए का बाय ट्रिगर है, लेकिन ओपन हुआ 202 में, उस टाइप का। तो उसके बाद एंट्री तो करना ही पड़ता है, बिकॉज इफ यू, ऐसा नहीं कि नहीं जब नीचे आऊंगा तब लूंगा, उसके बाद नीचे आएगा नहीं आएगा आपके हाथ में नहीं है। तो कब करना चाहिए? 9:15 एट 9:20 तो ये है सिस्टम निफ्टी 20 का। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट आई लाइक्ड इट वाज, when the market goes into a correction mode, I am not talking about a bear market, I am talking about a correction. For example, this correction, यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो 199 के आसपास एग्जिट मिला और री एंट्री 190 192 में मिला। तो अगर इसका अगर क्यूमुलेटिव ये निकालोगे तो बैक टेस्ट में इतना अट्रैक्टिव रिजल्ट्स है। इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स बिकॉज इट इज मिसलीडिंग। वो रिजल्ट रेप्लिकेट करना, देन पीपल विल से मेरे को वो नहीं मिला, तो आई लीव इट टू द ऑडियंस to test it for themselves. But I can assure you that I have tested it, and 17 years is not a small period for a back test. The biggest thing I found is, in fact this came out like I said earlier, कि लोग पूछते हैं कि अगर ये कहना बहुत आसान है कि you should invest that much money in the stock market which you don't require in the near future. So what is near future? How much is the money I don't require? No one can answer that. आज लग रहा है कि I can spare 50,000 rupees, but 2 साल के बाद समझो मेरा निफ्टी भी 50,000 का 40,000 आ गया, and I require money, तो मेरे को लॉस में निकलना पड़ेगा। That is the problem, and this saves you from that kind of drawdown. जब एग्जिट आता है तो you are back in cash, और ये कैश को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। अगेन लिक्विड फंड इज नॉट लाइक अ म्यूचुअल फंड, उसका मार्केट से लेना देना नहीं है, इट इज अ मनी मार्केट। तो लिक्विड फंड में इफ यू सी एनी लिक्विड फंड, देयर आर एटलीस्ट 3-4 गुड लिक्विड फंड्स, उसका ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न इज अबाउट 4 to 5%। सो लिक्विड फंड भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही है, सो एक कैटेगरी उसका है, यानी हाँ उसका कैटेगरी अलग है, बट मनी मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं, और उसका इनफैक्ट उसका भी अगर हिस्ट्री देखोगे तो 4 to 5% का उनका रिटर्न है। बट 4 to 5% इज नथिंग बट बैंक एफडी का रेट। फॉर एग्जांपल अभी ये 212 के नीचे निफ्टी भी जाता है और सेल आता है, तो दैट होल वैल्यू आई विल पार्क इट इन लिक्विड फंड। सो आप ओनली लॉन्ग साइड आप रहोगे, शॉर्ट साइड आप शॉर्ट का सवाल ही नहीं। तो जब भी अगर सेल अगर आएगा तो वो पैसा पार्क कर देंगे। सेल आएगा तो सेल वो 2 महीने के लिए है या 6 महीने के लिए है, आई एम नॉट श्योर, नो वन नोज। इनफैक्ट नो वन कैन प्रेडिक्ट कि फिर से बाय में कब आएगा। जितना ज्यादा चले उतना मैं म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड में डाल के आई विल सिट क्वाइट, एंड एवरी डे आई नो कि ये लेवल के ऊपर बाय है, तो लिक्विड फंड निकाल के नेक्स्ट डे आई कैन बाय द निफ्टी 20। तो उसका कन्वर्शन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग एट ऑल। ओके, तो ये हुआ निफ्टी 20 का। इसमें कुछ क्वेश्चंस है। तो ये जो सिस्टम है, यानी लमसम पे करना चाहिए कि एसआईपी? अगर मान लीजिए मेरे पास नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है करने का, तो क्या मेरे पास 1000 रुपीज है तो एवरी मंथ हम, हो सकता है कि 1000 रुपीज हम बचा रहे हैं, तो उस पे ये सिस्टम कर सकते हैं? मैंने जो बैक टेस्ट किया है वो दोनों टाइप का किया है। अच्छा। एक लमसम से शुरू, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैक टेस्ट, मैंने जनवरी 2007 से इन्वेस्टेड अमाउंट इज 50,000 रुपीज। उसका कितना होता है, ट्रस्ट मी दैट वैल्यू इज सो, मतलब सो मच ऑफ अप्रिसिएशन कि मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट हियर। इट बीट्स निफ्टी एवरी सिंगल मार्केट, मतलब निफ्टी 20 बीट्स निफ्टी इफ यू फॉलो द सिस्टम। लेकिन वो लमसम से शुरू है, बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी कंपेयर किया है कि इफ समवन हैड इन्वेस्टेड 1000 रुपीज पर मंथ एवरी मंथ फ्रॉम 2007, उससे भी कहीं ज्यादा है उसका रिटर्न। ओके, नाउ कंपेयर दैट 1000 रुपीज पर मंथ एंड यू से यू हैव 1000 रुपीज व्हिच यू कैन एलोकेट फॉर निफ्टी 20। बाय निफ्टी 20 एट ऑन अ फिक्स्ड डेट एवरी मंथ ओनली व्हेन द सिस्टम इज इन बाय। अगर ये सिस्टम जैसे यहाँ पे बाय हुआ एवरी मंथ, जो भी मंथ है, 1st ऑफ एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ, जैसे भी आपका डेट डिसाइड हम कर लेंगे। Just buy at 9:20 AM, 9:30 AM, and keep adding. That is called pyramiding. ठीक है। When it goes into sell everything. Okay, यानी जितना भी क्वांटिटी, मतलब 1000 समझो 3 महीना बाय चला। फॉर एग्जांपल someone had started in April, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 अगस्त भी हो गया, 5 महीने का उसका बाइंग हो गया, तो 5000 प्लस जो भी अप्रिसिएशन हुआ है, तो 212 के नीचे he will exit all. And let's say, I'm not predicting anything, let's say for the next 3 months Nifty remains in sell. तो September, October, November में you still have that 1000 rupees SIP, वो निफ्टी भी नहीं लेना है, वो पार्क इट इन लिक्विड फंड। तो सर इसका मतलब जो 5000 जो 5 महीने का जो हम बाई किए हैं,
वो भी लिक्विड फंड में डाल दे, इसका रिटर्न भी लिक्विड फंड में डालो और नेक्स्ट मंथ से जो भी 1,000 रुपए जब तक वो सेल में है वो भी लिक्विड फंड में डालो। अच्छा, वो भी लिक्विड फंड। तो जब बाय आएगा, लेट से अगस्त में सेल आया और बाद में अक्टूबर में बाय आया, तो वो ये 5,000 प्लस 3 महीने का 8,000 यू पुट दैट इन निफ्टी बीस। तो ये है निफ्टी बीस का सिस्टम। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है ये तो, यानी स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो मैंने तो शुरू किया है, नहीं, you know that. मैं भी स्टार्ट करूंगा इसको। और इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम है कि पीपल ऑलवेज, मतलब दैट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट निफ्टी, I mean equity market is not the only asset class which people can invest. There is another very good asset class, gold. So again, if you talk to ladies, they will always want to buy gold. But gold again, like mutual fund, ऐसा नहीं होता कि gold keeps going up always. वो ऐसा नहीं होता है। तो I have the same system on gold bees. Now again here, look at the gold bees का candlestick chart. It is such a weird looking chart. उसको अगर मैं रेंको पे कन्वर्ट करूं तो ये हो गया गोल्ड बीस का रेंको चार्ट। अगेन आई विल मेक इट 0.25% एंड एड द इंडिकेटर। मस्त। तो अभी गोल्ड सेल में है। इनफैक्ट ये सेल जो इधर आया तो एक सॉर्ट ऑफ रिटेस्ट हुआ, वो ऑलमोस्ट बाय में जाने वाला था लेकिन नहीं गया, उसके बाद वो सेल में है कंटिन्यूसली। तो सिस्टम मेरा ऐसा है कि allocate a different amount. If you want to start with lump sum, again that is subjective, it is completely discretionary. कितना रेशियो मेंटेन होना चाहिए? For me it is 75 and 25. If I have 1 lakh rupees every month, 75,000 for Nifty Bees, 25,000 for gold bees. Okay. Even if it is lump sum, let's say it is 5 lakh rupees lump sum, then 75% of that for Nifty Bees, 25% for gold bees. So whenever gold bees is in buy, invest that much, 25% of that value in gold bees. There are times when both are in buy, there are times when both are in sell. और इसका क्या रीजन है जो 75-25 का कुछ रीजन? ये लॉजिक वो मेरा पर्सनल लॉजिक, बिकॉज 17 साल का जो बैक टेस्ट है उसमें निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है उससे कम रिटर्न गोल्ड बीस ने दिया है। लेकिन एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, 2020 के कोविड के टाइम, इनफैक्ट वेल बिफोर द लॉकडाउन, निफ्टी बीस गेव अ सेल नियर 120। दैट टाइम निफ्टी बीस वाज 120 बिकॉज निफ्टी वाज 12,000 के आसपास। 120 में सेल दिया, उसके बाद बाय कहां आया होगा? व्हाट इज योर गेस? 120 में सेल किया 80 के करीब में। यस, बिकॉज यू नो कि निफ्टी का लो वाज 7511, इसलिए वो बाकी इट इज नो रॉकेट साइंस। Nifty bees fell all the way to 80, 83 का sort of low, and when the buy came, that time it was around 85, 86. So that is the difference जो हर ठीक है, वो ज्यादा महीना नहीं चला, 1.5-2 महीना ही चला, but instead of 120 पकड़ के बैठो, you can sell at 120 and buy again the whole thing at 86. That is मतलब 40% more quantity you can buy. But it is again, I repeat, it is not every time the same thing. There are whipsaws, but then you never know which trade will be the next big trade. And from my experience of 17 years of studying this system, there is at least one and sometimes two good trades in a year. जैसे ये अप्रैल से लेके अभी तक चल रहा है, which is already cross 10%. स्टॉप लॉस लेके जो 212 का लेवल है वो भी एग्जिट लेवल पकड़ा तो भी इट इज 10% के ऊपर इन 4 months. काफी तो वैसा कभी कभी once in a year, कभी कभी twice in a year. There are in the last 17 years there was only one negative year, which was 2015. Everyone knows that. In fact, you can go to the chart of Nifty and see that it was in 2015. The advantage why you should have also gold, जो मैंने कोविड के समय का जो एग्जांपल दिया निफ्टी का, when Nifty went from 120 to 85, that time gold gave a trade in those 2 months of 25%. In 2 months. Everyone knows that gold had shot up. तो अगर गोल्ड का अगर चार्ट देखोगे फरवरी मार्च 2020 का, गोल्ड ने एक इतना लंबा ट्रेड दिया विद इन 2 months. तो दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव, यू कैन नॉट से कि वही निफ्टी का जो पैसा है मैं गोल्ड में डालूंगा. यू कांट से दैट बिकॉज व्हेन विल बी द नेक्स्ट निफ्टी बाय, यू नेवर नो. एंड इफ यू हैव द फुल मनी इन गोल्ड, देन यू कांट से कि कब निकालूं गोल्ड का, तो वो थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा. या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड भी बाई में हो, ये भी बाई. वही बोला कि समटाइम्स आई हैव सीन बोथ निफ्टी एंड गोल्ड आर इन बाय. Sometimes Nifty is in sell, gold is in buy. Sometimes both are in sell. तो ये कब क्या होगा, no one knows.
if you are a slightly advanced practitioner, if you know ratio charts, if you can understand Nifty gold ratio and all that, that is up to you. For newcomers, I would always advise keep two different amounts, for one for Nifty bees, one for liquid bees, gold bees, और जो सेल में है उतना अमाउंट लिक्विड फंड में डाल. परफेक्ट. द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर वेरी एक्टिव ट्रेडर्स, मतलब ये तो रही न्यू कमर्स की बात या पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट. इवन फॉर पीपल हु नो एवरीथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, बोथ दीज कैन बी प्लेज्ड. तो समझो मेरा 5-10 lakhs का निफ्टी बीस और गोल्ड बीस में बाय भी है तो भी आई कैन प्लेस दैट एंड यूज इट फॉर माई ट्रेडिंग. सो दिस इज जस्ट एडेड एडवांटेज. ऐसा नहीं कि आई रिकमेंड डूइंग दैट. अगेन इट इज फॉर पीपल हु आर यूज्ड टू प्लेजिंग एंड ऑल दैट, बट दैट इज एन एडवांटेज कि इसमें प्लेज में हेयर कट स्टॉक्स के जैसा नहीं, अच्छा हेयर कट होता है. तो यानी प्लेज करके और फिर ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, और फिर आप ऑप्शन स्ट्रेटजी कुछ तो आप बताएंगे. तो ये रहा सिस्टम. प्लॉट निफ्टी बीस चार्ट ऑन रेंको, यूज ब्रिक साइज 0.25%, जस्ट समराइजिंग इट. एड इंडिकेटर मस्ट, बाय ऑन द कंटिन्यूएशन ब्रिक above L2, exit on the continuation brick below L2. Allocate capital in two parts, one for Nifty bees. 75% is my preferred allocation, that is up to you, but it should not be less than 50% for Nifty bees. It should be more than 50. If you want to keep it equal, it is up to you. So 25% for gold bees. When the system is in sell, park funds in liquid funds. So ये है जो सिस्टम मैंने जो रिसर्च किया है. ऑफकोर्स आई कांट से आई इन्वेंटेड इट. इनफैक्ट इफ यू गो टू यूट्यूब you will find hundreds of videos on Nifty bees. There are people who have, but everyone says the same thing कि SIP करो, SIP करो. But my problem was whenever someone asked me कि exit कब करूँ, जब मेरे को पैसा चाहिए, तब अगर लॉस में हूँ तो क्या करूँ. तो वो रीजन दिमाग में रख के मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च करके निकाला कि एग्जिट भी होना चाहिए उसमें. और अभी तक जो SIP के माइंड, मेरे माइंड में जो था खासकर, और सबके माइंड में आई थिंक होगा ही, कि SIP का मतलब एवरी मंथ करते रहो कंटिन्यूअस, ये एवरेज आउट होते जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो ऑफ कोर्स आई नेवर यूज द वर्ड गारंटी, आई नेवर यूज द वर्ड अश्योर, बट लुकिंग एट दिस सिस्टम there is a very great chance that you will beat your SIP by doing this. Only thing is that discipline. रोज एक बार लेवल देख के कल एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, that you have to decide. अभी जैसे निफ्टी इज ऑलमोस्ट सेल में आने वाला है, आएगा कि नहीं मालूम नहीं, आया तो you have to get out. और ये जो रेनको चार्ट जो आप दिखाए, यानी डिफाइनेज सिक्योरिटीज में जिसका भी डीमेट अकाउंट है उसको फ्रीली अवेलेबल है, तो वो आप जाके देख सकते हैं. वहां पे आपका लॉग बॉक्स वैल्यू, ये जो कि परसेंटेज में, दिस इज द ओनली सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड व्हिच गिव्स लॉग बॉक्स वैल्यू, दैट इज परसेंटेज वैल्यू ऑन द ब्रिक साइज. एब्सोल्यूट में प्रॉब्लम है बिकॉज 2 एब्सोल्यूट एट अ वैल्यू ऑफ 50 एंड 2 एब्सोल्यूट एट अ वैल्यू ऑफ 200 इज वेरी डिफरेंट. So that's why you need a percentage brick size, which is log brick size. तो ये रहा, and in fact this is not a system I want to boast about. This is just something which I have observed. Now I want viewers to ask questions, give suggestions. What are the pros and cons as per your understanding? Whether you are doing something similar, please comment on the video below and do subscribe to our channel, like it and share it. Thank you. Thank you.